Mohammed sir, I just wanted one small question. Yeah. When you approached this temple for the reconstruction work and all Yeah. that, did you have any reference before that, or when you were posted there, that time only you encountered it? Did you have any reference material to check on Yeah. on building this? Yes, I mean, as I told you, because there are few, I mean, treaties are there on temple architecture. One is that Manasara. So Manasara comes up to 4th, 5th, and 6th century. And after that, after the Manasara, we get that Mayamata. So that is from 7 up to 9th century. And then comes the Samarangana Sutradhara of Raja Bhoj. He was a great man, great architect. He was an engineer. So that is, I mean, 12th century. But when you go to southern India, there we have got Tantra Samuchaya. So this was, I mean, as per Mayamata. So as per Mayamata, you have got various temple parts. And there were few temples that were standing also. So we could compare those standing temples also and then with Mayamata also. And then once you get the one particular architectural piece, our workers became so expert, they could identify this belongs to this one, this belongs to this one, this belongs to this one. So that comes out of experience only. So this question has come from Dr. Mr. Prasannan. He is the bureau chief of this our week magazine. Before restoration. Yeah. No, it was a kind of huge earthquake. I think most probably it was in 13th or 14th century. A huge earthquake had come. Even Qutub Minar also was affected by that one. And then it was Firoz Shah Tughlaq who had carried out the repair work. So we have correlated this thing with that one. Because after 13th century, you don't get any kind of temples there. So it is only up to 13th century. मोहम्मद साहब, मैं डॉक्टर मीना गौतम, मेरा भी थोड़ा सा तजुर्बा रहा है एएसआई में एज डायरेक्टर नेशनल मिशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो उसमें काफ़ी अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। Yes. इस रीजन में एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स कितने हैं और कितने ऐसे हैं कि जो अनप्रोटेक्टेड हैं? क्या उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का कुछ काम हुआ या नहीं? नहीं है। तो उसको कैसे इंश्योर करें कि उनका रिपेयर या उसका कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से उसको बचाया जा सके? हाँ, yes, there are two things. One is the central archaeology. Central archaeology के पास जो आर्कियोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके पास बहुत कम मॉन्यूमेंट्स है, क्योंकि इट्स ओनली 5000 मॉन्यूमेंट्स इन द होल कंट्री. तो 5000 मॉन्यूमेंट्स इन द होल कंट्री इज नॉट मच. लेकिन स्टेट आर्कियोलॉजी और सेंट्रल आर्कियोलॉजी का एक तो फंड ही बहुत ही कम है. Virtually there is no fund at all. जो है अब इतना बड़े तुगलकाबाद, आदिलाबाद, इन सब चीज़ें, लाल किला, इन सब के लिए पैसा बहुत चाहिए. You need to have this kind of manpower also. ये कुछ भी नहीं है. And then you have to have a visionary, this one, Minister of Culture also. तभी ये सब काम जो ना आगे बढ़ेगा. पैसा तो फंड तो है ही नहीं है. बाकी सबके लिए आप पैसा दे देंगे. टूरिज्म के लिए पैसा बिल्कुल एकदम बहाएंगे, लेकिन जिसकी वजह से टूरिज्म है उसके लिए नहीं देंगे. कोई भी गवर्नमेंट आए, वेदर इट इज कांग्रेस गवर्नमेंट, वेदर इट इज बीजेपी गवर्नमेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, पॉलिसी बदला नहीं है. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ. मेरा नाम परवीन गुजर है, मैं अखिल भारतीय वीर महासभा का सदस्य हूँ. मैं आप सबका प्रश्न आपसे नहीं है सर से है, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, कि शाम 6 बजे से डिबेट चालू हो जाती है चैनलों पे, दुनिया भर के मुद्दे इधर उधर के, जो इतना सटीक मुद्दा है, इसको लेकर देश एक हो सकता है, देश के विचार एक हो सकते हैं. ऐसे महान आत्माओं को आप नहीं दिखा सकते चैनलों को? नहीं, बहुत बार दिखाया. शाम 6 बजे से 10 बजे तक टाइम देते हैं शनिवार इतवार में. हमने आपको आज तक नहीं देखा. हम ये चाहते हैं कि आप शाम को किसी ना किसी चैनल पे आप जो आए, जो घर वालों को पता है कि मुझसे मिल कर आए. मैंने ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम बढ़ता है न्यूज़ चैनल वालों. मैंने दिखाया था. तो आप कंटिन्यूटी बहुत बार पाता 100 जैसा टेंडर भर रखा उसने. तो आप एक बार तो खा के रह गए, 2-4 प्रोग्राम सुनाओ. धन्यवाद. KK Mohammed ji, when I met you today, I told that I said to you that I have never seen another KK Mohammed walk on this earth, and I reiterate my words again. I would like to, on 4th of November in 2017, I had visited Vrindavan. And yes,
And there's, you know, a place called the Kesi Ghat, and it's completely in ruins. Yes, yes. The entire country, everyone, you know, like they speak so much about Vrindavan and the yes, but you know, it's completely in Say. absolutely. Yeah. Say. Will you also take some interest in I mean, you know, in giving your, you know, your I mean, sharing with the Yes. present archaeological survey your expertise and your experience, and you know, do some restoration work, which is very, very necessary. I mean, it is a need of the hour at Vrindavan. Yeah. Say. Because you know, even I mean, these are not protected monuments of the ASI, but I mean, this one, the Ministry of Culture चाहे, especially Vrindavan में the condition is very bad, extremely bad, और सारी घाट जो है उसकी हालत ख़राब है. जगमोहन जी का एक प्रोग्राम था, तो we were also part of that one, लेकिन फिर फिर वो चले गए, इसलिए आगे नहीं बढ़ा. Now there is one Mr. Vineet Jain, he is doing some very meaningful work. लेकिन ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की जो कुंडलिनी वो कभी जगह नहीं है. That is the biggest problem, because we have to criticize the government also, because nothing is happening. क्या हुआ है ये इन सब चीज़, वो तो उपनिषद भूमि है, हस्तिनापुर है, आप जो ना पूरे की पूरा जो ना जितना विदेह है, they are all in shambles. Nobody thought of it. तो ये सब चीज़ें जो ना आपको करने के लिए यू हैव टू हैव ए वेरी पावरफुल मिनिस्टर ऑफ कल्चर, तभी होगा. कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है. अपने मुंह से बड़ा कहे वो बड़ा नहीं कहलाता है, जिसको दुनिया बड़ा कहे बस वही बड़ा बन जाता है. आपकी एक शिकायत आई, गवर्नमेंट नहीं करती. सही. कभी आपने गवर्नमेंट की मजबूरी को समझा है? जो मिनिस्टर बन कर के जाता है वो बेचारे पिछले 25 साल से तो पशु चला रहा होता है. जिस मिनिस्टर से आप बहुत बड़ी उम्मीदें करते हैं उसे 5-4 साल तो समझने में लग जाता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है. मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके बोर्ड में ऐसे प्रतिनिधि हैं कि जो मिनिस्टर का कान पकड़ करके समझा सकें कि यदि आपने ये नहीं किया तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, तभी तो वो समझेगा. उसका अपने नुकसान से परिचित होना चाहिए, उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है. पिछले दिनों में नाम लेना नहीं चाहता. भाई से प्रश्न थोड़ा संक्षेप में कर लें. देखिए, सभा का एक डेकोरम है, मेरा अनुरोध है आपसे. मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कोई, जैसे अभी पत्रकार बंधु बैठे हैं और एक भैया ने हमारे ने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन आप, मैं वहीं आ रहा हूँ आपकी बात पर, ये क्वेश्चन आप अपने बोर्ड में, अपने चैनल पर हम लोगों से क्वेश्चन उठाएं. मैं मानता हूं कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, आप बंधे हुए, हम तो किसी से बंधे हुए नहीं हैं. इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब पत्रकार बंधु आप क्वेश्चन पूछें तो कम से कम ये तो पूछें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा. हम कह सकते हैं कि जो मंत्री जी बैठे हैं उसे तो बेचारे को पता ही नहीं है, वो तो बेचारा मजबूर है, क्योंकि हमारे कपड़े तो फाड़ नहीं सकता, हम तो खुद ही फटे फटाए कपड़ों से आते हैं. ये मेरा आपसे निवेदन है. थैंक यू. एक बार हम जोरदार तालियां बजाकर मोहम्मद साहब का इस्तेमाल कर दें. मैं जब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस किस्म के भाषण को सुनने जा रहा हूँ, क्योंकि आर्कियोलॉजी मेरा विषय नहीं है. हालांकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पर पता नहीं किसी संस्थान का प्रमुख होने के नाते शायद मुझे यहाँ बुला लिया गया. लेकिन जब यहाँ आया तो आपको बहुत रोचक बात बताता हूँ, खासकर जो युवा बच्चे बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी. मेरे जन्म से 7 साल मैंने जौरा में बिताए. जौरा मुरैना जिले का तहसील है, और मेरा जिस डाकुओं का आपने उल्लेख किया, हमारे घर की पीछे वाली सड़क पे पुलिस और डाकुओं की फायरिंग होती थी, और हमारा जन्म गोलियों और गालियों को सुनते सुनते बीता है. क्योंकि जब डाकू और पुलिस एनकाउंटर करते हैं तो वो सिर्फ गोलियां नहीं चलाते, वो गालियां भी चलाते हैं. और उसमें से तकरीबन 4.5 साल हमारे घर में जौरा में लाइट नहीं थी, तो बिना बिजली के, हम सरकारी कॉलोनी में रहते थे, तो बिना बिजली के डाकुओं को देखा है. मैं बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि बीहड़ शब्द हमने सुना है, आप में से कितनों ने बीहड़ एक्चुअली देखा है?
ये देखिए, सिर्फ एक बच्चे ने देखा या दो नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूं। दिक्कत क्या होती है कि जब हम कहते हैं कि चंबल के बीहड़ में डाकू हैं, तो बीहड़ की कल्पना लोगों को लगता है जंगल जैसी कोई चीज होगी, उसमें से डाकू पैदा होते होंगे। अगर आप चंबल की सच में बीहड़ों को देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे टोपोग्राफिकल एनवायरनमेंट में व्यक्ति कैसे अपने आप को जीवित रखता है, सरवाइव करता है, और वो जीवन का संघर्ष करता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस बीहड़ में जाकर डाकू बनने पर मजबूर हुआ है, बंदूक उठाने पर मजबूर हुआ है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सामाजिक कारण होता है। इसलिए दस्युओं का जो चेहरा या डाकुओं का जो चेहरा हमको और आपको दिखाई जाता है या दिखाया जाता है, दरअसल उसके पीछे भी एक और चेहरा होता है। वो चेहरा बहुत बड़ा मानवीय चेहरा होता है, एक संवेदनशील चेहरा होता है, जिस चेहरे का दर्शन मोहम्मद साहब को हुआ है। और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण होंगे, गुर्जर साहब बताएंगे जो उस क्षेत्र में रहते हैं। जितनी डाकुओं की दुर्दांतता की कहानियां हैं, उतनी उनकी दरियादिली की भी कहानियां हैं। मानसिंह जी के हत्याओं के आंकड़े आपने बताए होंगे, पर मानसिंह जी की कन्यादान के आंकड़े उससे ज्यादा होंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, जो बात आपने कही या जो बात आप कह रहे हैं, सारी की सारी चीजें तंत्र पे और सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। कुछ चीजें हमको भी बतौर समाज करना पड़ती हैं, जिसको हम बार बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। वो सिर्फ किताबों में पढ़ने से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, वो उस जमीन के दर्द से आती है। कहावत है, जाके पैर ना फटे बिवाई बोका जाने पीर पर आई। तो जब तक हमारे पैर में बिवाई नहीं फटेगी, तब तक हम जाके यहाँ पे किसी मंच पर बैठकर भाषण देंगे तो नहीं संभव होगा। अगर मोहम्मद साहब सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट होते और सरकारी नौकरी कर रहे होते, तो वो सिर्फ अपना वेतनमान देखते, सालाना इंक्रीमेंट देखते, प्रमोशन देखते और मलाईदार पोस्टिंग देखते, शायद उनको मिल भी जाती। लेकिन उन्होंने उन सब के अलावा जो देखना चाहा वो है समाज के मर्म को जानना चाहा, काम के धर्म को जानना चाहा। आप इनका धर्म मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, इनका धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, इनका धर्म काम है। ये कर्म के धर्म को पालन करते हैं। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या क्या है? धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया गया वही धर्म है, जो मेरे शरीर का, मेरे व्यवहार का, मेरे स्वभाव का हिस्सा है। तो कोई व्यक्ति अगर पैदाइशी सिर्फ किसी मुसलमान के घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हो गया, या पैदाइशी किसी हिंदू के घर में पैदा हो गया इसलिए हिंदू, ऐसा नहीं होता। उसने किस धर्म को अपने काम का जरिया बनाया है, अपनी सोच का जरिया बनाया है। और ये बात विशेषकर हम नई पीढ़ी के बच्चों को सीखना चाहिए। ये सब बहुत बहुत उथली बातें हैं जो होती हैं कि फतवे जारी हो गए, झंडे लेके चले गए, डंडे लेके चले गए। अब ये झंडे और डंडे की राजनीति से कब हम निकलेंगे और कब हम इस देश में ठोस काम करेंगे, इस प्रश्न को सोचने की जरूरत है। मैं बहुत गौर से देख रहा था, जब जब वो संस्कृत का श्लोक पढ़ते थे तब तक आप ताली बजाते थे। ये ताली बजाना भी हमको किसने बता दिया कि कोई मुसलमान श्लोक पढ़ेगा तो ताली बजा देना? गलत है। ये उनके व्यवहार का, उनकी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। हम में से बहुत लोग दरगाह में जाते हैं और दरगाह में जाके अपनी इबादत करते हैं। हमने कभी धार्मिक स्थलों को अपने दायरों में बांधने की कोशिश नहीं की। ये हमारे देश की संस्कृति रही, ये बाहुलतावादी संस्कृति रही। और ये भी कहना कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, ये बात गलत है। दरअसल ये अनेक होना ही हमारी एकता की, हिंदू की विशेषता है, भारत की विशेषता। हम इसी तरह जिए हैं। एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय की भी दो लोग एक जैसा नहीं सोचते, अगर वैसा कहा जाए तो इसलिए इस बात को समझते हुए हम सच में इस बात को गौर करें कि कितनी बड़ी बात कि ऐसे बीहड़ में जाके, ऐसे दस्युओं के बीच में जाके, जहाँ पुलिस जाने से डरती, जहाँ प्रशासन जाने से डरता है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं, वहाँ उसको खोजना, खोजने के बाद उसको संज्ञान में लाना और संज्ञान में लाने के बाद उसमें काम करना, ये सच में एक बहुत बहुत जोखिम का काम है, बहुत हिम्मत का काम है। इसके लिए उनकी दाद देनी चाहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रकृति की बात कही, आपने बहुत सुंदर बात कही। पेड़ को काटने से पहले पेड़ की अनुमति लेना पड़ती है। अब ये देखिए, ये बात किसी अंग्रेजी साहित्य में नहीं मिलेगी,
अगर आप बॉटनी की किताब में पढ़ेंगे तो बॉटनी की किताब में कोई नहीं बताएगा कि पेड़ को काटने के लिए पेड़ की अनुमति जरूरी है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का रचा बचा हिस्सा है। ये क्यों है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बचपन से बताया गया कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो इसलिए पेड़ से पूछ लेना। पेड़ से पूछ लेने का मतलब क्या है? जब आप पेड़ से पूछते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कितनी पत्तियां हरी हैं, तब आपको महसूस होता है कि अरे यार ये हरा भरा पेड़ है। फिर आपको लगता है कि इसमें से तो फूल भी निकल रहे हैं, उसमें से तो फल भी निकलने वाले हैं। फिर आप देखते हैं कि शाम को हजारों चिड़ियाएं आके उस पर बैठ रही, तो आपका मन कचोटता है कि अरे इसे काटना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई सूखा ठूंठ होगा तो मैं काट लूंगा। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, बच्चों को शायद बहुत मजा आएगा सुन के। मेरे बचपन की बात है, रात को बुखार आ गया, गांव था, काढ़ा बनाना है। काढ़े के लिए आपको तुलसी की जरूरत है। जिनको मालूम होगा उन्हें ये भी मालूम होगा कि रात में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो हमारी माँ तुरंत गई और तुलसी के पत्ते तोड़ने लगी। तो जो हमारे घर में चौकीदार थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मत जाओ माँ जी, मैं जाऊँगा। और उन्होंने जाके बाकायदा तुलसी मैया के सामने प्रार्थना की कि माता जी वैसे तो अभी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भैया को बुखार तनिक ज़्यादा हो रहा है और अभी कोई दवाई नहीं मिल सकती, तो अगर आप कहेंगी तो हम 4 पत्ता तोड़ लें। फिर वो 2 क्षण रुके जैसे कि तुलसी मैया ने उन्हें आज्ञा दी हो, और फिर जाके उन्होंने पत्ते तोड़े। ये उसने सिखा दिया कि हमको कैसे पेड़ को रक्षा करना है, कैसे हमारी परंपराओं को जीवित करना है। तो ये सिर्फ मंदिर बनाना ही परंपराओं को जीवित रखना नहीं है। मेरा कहने का आशय यह है कि उसके साथ की जो पूरी अवधारणा है, जो पूरी संस्कृति है, जो पूरा उसके साथ का हमारा सोच है, अगर हम उसको भी जीवित रखेंगे तब जाके सचमुच वो मंदिर बनेगा। नहीं तो मंदिर तो आज बहुत बना सकते हैं। आपके पास आर्किटेक्चर्स की क्या कमी है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की क्या कमी है? आप बड़े से बड़े भव्य से भव्य मंदिर बना सकते हैं। लेकिन हम जिसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, वो प्राण क्या है? दरअसल वो प्राण हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी प्रतिष्ठा हमें उस मंदिर में करनी है। तो ये बहुत आज जो सिर्फ ये आर्कियोलॉजी का लेक्चर नहीं था, मैं इसलिए ये महसूस कर रहा था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी भारत की सांस्कृतिक धरोहर, हमारे सामाजिक व्यवहार का एक भाषण था। तो इसलिए इस सबको आपको देखना, इस सबको समझना, इस सब के बीच में से आगे जाना बहुत ज़रूरी है। जो आर्कियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, जो भविष्य में एक्सकेवेशंस पे काम कर रहे हैं, वो जानेंगे कि जैसे ये वाला पूरे मंदिरों का समूह है, वैसे सांची के पास एक सतधारा करके है, जो सांची का स्तूप हम कहते हैं कि एक ही स्तूप है। सतधारा में सांची से बिल्कुल 15-20 किलोमीटर दूर पर करीब करीब 25 या 30 स्तूप हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची से 4 गुना बड़ा स्तूप है। उसका एक्सकेवेशन चल रहा है और वहाँ अगर आपको जाके देखना हो तो कैसे एक एक पत्थर पे, मुझे जाने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि 10,000 पत्थर हैं, लेकिन 10,000 पत्थरों पे बाकायदा नंबर लिख के मेटिकुलसली, ये पत्थर इस नंबर का यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो कहाँ लगेगा, ये इतना बारीक काम है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में अगर इतना बड़े पैमाने पे इन्होंने मंदिरों का रेस्टोरेशन किया है तो मुझे लगता है कि वो सचमुच एक बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि 200 मंदिर थे, उसमें से अभी तक 80 का अभी तक रेस्टोरेशन हुआ है, ऐसे ही है। तो बाकी 120 आपके लिए हैं। आप लोग सब बीड़ा उठाइए। मुझे बहुत खुशी है कि समाज के लोग आगे आगे। एक और बात बताता हूँ, ये गुर्जर समाज का मंदिर नहीं है, ये तो भारत का मंदिर, देश की धरोहर है। तो जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये गुर्जर समाज का है, ये पाटीदार समाज का, ये देवार समाज का है, उस दिन तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये तो देश की धरोहर है, देश की धरोहर है। देश की धरोहर को हम सबको बचाना है, इसलिए हम लोग इसमें काम करेंगे, संकल्प से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ी शिक्षा हमको यहाँ पर आपने दी है इस पैमाने में। और सिर्फ अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि हर बार सरकार का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार एक बहुत बड़ा तंत्र है, उसकी अपनी गति है चलने की। उसके बावजूद अगर बहुत सारे आपको हमारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी धरोहर देखने को मिलती है, तो वो भी तो किसी न किसी सरकारी आदमी नहीं किया हुआ रहता है। तो हम हमेशा ग्लास को जो खाली है देखना चाहते हैं, जो भरा हुआ है वो नहीं देखना चाहते। अक्सर लोग कहते हैं रेलवे में बहुत भ्रष्टाचार है, तो मैं कहता हूँ कि 90% रेलें समय पर चलती हैं, 10% लेट होती हैं, या 10,000 में से एक रेल एक्सीडेंट हो जाती है, तो हम उन 90% लोगों की ईमानदारी को क्यों खारिज करते हैं, जो बिना किसी लालच के सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।
तो हम हमेशा अगर सफ़ेद चीज़ को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि क्या होता है, आप जैसे पूरी सफ़ेद शर्ट पहने हैं तो कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा भी काला सा दाग आ जाएगा तो 50 लोग कह देंगे भाई साहब आपकी शर्ट में दाग है। काला हमें ज़्यादा दिखता है, काला हमें पहले दिखता है। सफ़ेद देखने की कोशिश करें तो शायद उसमें से हमारी भी दृष्टि बदल जाएगी, फिर हम सरकार के भरोसे भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, मंत्री अपना काम करें, अधिकारी अपना काम करें, लेकिन मोहम्मद साहब जैसे कुछ लोग हैं जो अधिकारी होते हुए भी अपने सामाजिक दायित्व को सोच के काम करें। यही बात आज हमको सीखने को मिली है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ जो आपने इतनी गूढ़ बातें इतने सहज ढंग से हम सबको बताई हैं, और आप सभी श्रोताओं को भी मैं बहुत आभार देता हूँ कि इतनी शांति से, इतने धैर्य से और इतने मनोयोग से आपने ये सारी बातें सुनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।